Do you know a fun fact? In case of any industry, 40% of the electrical power is being wasted only because of braking of electrical motor. In that case, we cannot say that the industry is an energy efficient system. That is why it is very important to have a proper braking system installed in an industry. Now let's take an example of a bottling plant. Inside a bottling plant, sometimes there can be a mechanical error like you can see in the video. In that case, the operator sees that error, goes to the nearest emergency stop button and press it. As a result, everything stops immediately. After that, the operator goes to the error area and rectifies that error, then resets the whole process and then start again. Imagine if he does not have that kind of facility. Imagine he uses the same braking mechanism that we use in our electrical fan. In that case, the industry will face a very huge loss. That is why a proper electrical braking mechanism of a motor is important. But what exactly happens when we press that button? What actually happens to the motor? If you want to know that, then keep watching this video. Now, any type of braking system should have three properties. That is, it should be fast, it should be reliable, and the kinetic energy generated while braking should be easily dissipated in either a resistance or a metallic part. Generally, braking of a motor is being divided into two parts: electrical braking and mechanical braking. In case of mechanical braking, it is the same braking that we use in our bikes, cars, and etc. That is disc brake or a drum brake. Either you dissipate the heat on a disc, or you can dissipate the heats on the drums. But in case of electrical braking system, you use a complex electrical connections in order to brake the motor, and you also dissipate the heat to the resistance, or you can easily feed back the power back to the system. Generally मोटर की ब्रेकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग. मैकेनिकल ब्रेकिंग उसी तरह का ब्रेकिंग है जो हम किसी बाइक या कार में देखते हैं, जैसे कि ड्रम ब्रेक हुआ या डिस्क ब्रेक हुआ. बट एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऐसा ब्रेकिंग है जिसमें हम जो पावर यूजुअली जनरेट करते हैं ब्रेकिंग में, वो हम एक रेजिस्टेंस को डिसिपेट कर सकते हैं या फिर उसे सिस्टम को वापस भी फीड कर सकते हैं. So that is what the difference between that. But generally, electrical braking is preferred over a mechanical braking. Electrical braking को mechanical braking के ऊपर prefer किया जाता है. Because the reason is it is more smoother than mechanical braking. Electrical braking mechanical braking से ज़्यादा smooth होता है. It is more faster. Electrical braking एक mechanical braking से ज़्यादा fast हो सकता है. The maintenance cost of electrical braking is very less as compared to the mechanical braking. Mechanical braking में हम brake shoe या brake pad या drum brakes यूज़ करते हैं जिससे कि उनका maintenance cost बढ़ जाता है. That is why maintenance cost in electrical braking is less. In case of electrical braking, we also have the option to feed back the power generated on a braking process. ब्रेकिंग प्रोसेस में जो पावर हम एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं वो हम सिस्टम को वापस फीड भी कर सकते हैं. तो वो ऑप्शन भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में है जो मैकेनिकल में नहीं होता. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम हैज़ लेस चांसेस ऑफ फेलियर. यानी कि मैकेनिकल ब्रेकिंग का चांसेस फेलियर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल. सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जनरली प्रिफर्ड ओवर अ मैकेनिकल ब्रेकिंग. बट इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस. उनका कुछ डिसएडवांटेज भी है. जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ मोटर इज मोर कॉम्प्लेक्स. नॉट एवरी मोटर कैन हैव इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम. सभी मोटर्स को इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जा सकता. एंड किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से यू कैन स्लो द मोटर अप टू 1 RPM. आप मोटर को 1 RPM तक स्लो तो कर सकते हैं, बट यू कैनॉट स्टॉप द मोटर और स्टक द मोटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. यानी कि आप मोटर को उस इंस्टेंट पे स्टॉप करके नहीं रख सकते. इमेजिन आप लिफ्ट में आ रहे हैं, बट आपका लिफ्ट स्लो तो होगा, बट दैट लिफ्ट विल नेवर स्टॉप. वो हल्के से 1 RPM स्पीड में चल ही रहा होगा. सो यू हैव टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग. तब जाके ही आपके स्लो पॉइंट पे मैकेनिकल ब्रेकिंग यूज़ करके हम उस मोटर को उसी पॉइंट पे स्टक कर सकते हैं. बट विच प्रोसेस इज नेम्ड एज अ ब्रेकिंग प्रोसेस. ब्रेकिंग प्रोसेस आखिर किस प्रोसेस को बोलते हैं? जैसे कि फ्रॉम द 4 quadrant ऑपरेशन वी हैव सीन दैट whenever
द मोटर रोटेट्स इन अ डायरेक्शन एंड द टॉर्क इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपका मोटर जो है वो एक डायरेक्शन पर रोटेट कर रहा है और आपका टॉर्क जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे प्रोवाइड हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस द ब्रेकिंग हैपेंस, लाइक फॉरवर्ड ब्रेकिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग। सो इस पूरे वीडियो में जितना भी ब्रेकिंग हम देखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका टॉर्क आपके स्पीड के उल्टे डायरेक्शन पे पड़ता है, व्हेनेवर यू हैव अ रिवर्स टॉर्क, देन यू विल फील द ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो उस पॉइंट को हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। और जब भी आपका टॉर्क और स्पीड एक ही डायरेक्शन पे रहेगा, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज मोटरिंग सिस्टम। बट इन दिस वीडियो आई विल ओनली डिस्कस द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ डीसी मोटर. After that, in the next video, we will see the electrical braking of a AC motor. But in case of a DC motor, there are three general types of electrical braking system. The first one is plugging. The second one is dynamic braking or rheostatic braking. And the third one is regenerative braking. Let's see first how exactly we do plugging inside all the three DC motors, that is series, shunt and compound. Now in case of a DC shunt motor, let's suppose take a case when the motor is connected to a supply. मोटर को हमने एक सप्लाई पे कनेक्ट किया है एंड वी प्रेस द स्टार्ट बटन। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, द करंट इज गोइंग इनसाइड द मोटर, इट इज गोइंग इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द आर्मेचर एंड द मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम 0 आरपीएम टू 1500 आरपीएम। मोटर जो है वो 0 आरपीएम से स्टार्ट होकर 15 आरपीएम तक रन करता है। नाउ इन दैट केस, सपोज व्हेनेवर अ फॉल्ट ऑकर्स एंड द ऑपरेटर प्रेसेस द स्टॉप बटन, उस टाइम पे क्या होगा, जब जैसे ही आप उस स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं, इन केस ऑफ प्लगिंग द कनेक्शन ऑफ आर्मेचर गेट रिवर्स्ड, यानी कि सी दिस, फर्स्ट केस में जो आई ए आर्मेचर करंट A1 से घुसकर A2 से निकल रहा था, अब A2 से इंसर्ट होकर A1 से एग्जिट हो रहा है। So what we have done, we have changed the direction of the current IA to negative IA. हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो आर्मेचर का था उसको रिवर्स कर दिया। तो जनरली हम जब भी किसी शंट मोटर में फील्ड और आर्मेचर में किसी एक पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, द मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। कैसे? जैसे ही हमने इस करंट को नेगेटिव किया, वी नो दैट टॉर्क ऑफ अ शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू phi IA. Now if we change the direction of IA, that means torque is now proportional to phi minus of IA. That means minus T is proportional to phi IA. अब जो हमारा टॉर्क है वो माइनस हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पीड और टॉर्क एक डायरेक्शन पे थे मोटरिंग ऑपरेशन में, अब वो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज रिवर्स्ड, दैट इज माइनस T. सो अब क्या होगा, जैसे ही टॉर्क रिवर्स हो रहा है, स्पीड अभी भी उसी तरफ है बट टॉर्क अब हमारे रिवर्स डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो अब जो है आपका आरपीएम जो है वो धीरे धीरे 1500 आरपीएम से नीचे आने लगेगा। इट विल गो अराउंड 0, बट इफ़ यू डिडंट स्टॉप दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन 0 आरपीएम, अगर आप इस सर्किट को 0 आरपीएम पे स्टॉप नहीं करते, बंद नहीं करते, तो वो 0 आरपीएम से भी नेगेटिव चला जाएगा, यानी इट मे कैन रन अप टू 1500 आरपीएम। बट आपको उसको रिवर्स में नहीं करा, बट आपको उसको रिवर्स में रन नहीं कराना। यू हैव टू स्टॉप दैट मोटर एट 0 आरपीएम। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो जैसे ही 0 आरपीएम पे आएगा, आप इस सिस्टम को ऑफ कर देंगे, आप उस सप्लाई को आपके सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। So this is how you stop the motor on the 0 RPM. This is how plugging works. But generally इस ऑपरेशन में जब भी आर्मेचर रिवर्स होता है, we usually connect a series resistance. We usually connect a series rheostat inside the armature circuit. क्योंकि हम जब आर्मेचर को रिवर्स कर रहे हैं, the RPM जिस RPM पे मोटर रन कर रहा था वो 1500 RPM था। 1500 आरपीएम में जब मोटर की कनेक्शन को रिवर्स किया जाता है, देयर इज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर। सो उस करंट को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसके वैल्यू को चेंज करके आप 1500 से 0 आने का जो टाइम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? We know that torque is proportional to phi IA. So now we can see that minus T is proportional to phi IA. So if we change the value of IA के वैल्यू को कंट्रोल करने से हमारा जो टॉर्क का वैल्यू है वो चेंज हो जाए। सो अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, यानी IA का वैल्यू कम रहेगा, IA का वैल्यू कम रहेगा तो ब्रेकिंग टॉर्क भी कम रहेगा, ब्रेकिंग टॉर्क कम रहेगा तो 1500 से 0 आने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इफ़ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ वेरी लेस,
दैट मीन्स IA इज मोर. इफ IA इज मोर देन रिवर्स टॉर्क इज ऑल्सो मोर, यानी कि रिवर्स टॉर्क -T भी ज़्यादा होगा, उससे 1500 से 0 आने में उससे बहुत कम टाइम लगेगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी डू दिस पर्टिकुलर स्टेप इन सीरीज मोटर. In case of a series motor now, again we'll do the same thing. We'll start the motor and we'll run the motor from 0 to 1500 RPM because torque and speed is in same direction. That is why it is in motoring mode. अब जैसे ही हम ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, in case of plugging वही होगा. Either one of them will get reversed. आर्मेचर या फील्ड दोनों में से कोई एक को हम रिवर्स करते हैं. Let's see, इसको रिवर्स करते हैं. The connection of armature should be reversed. सो जो IL पहले A1 से एंटर करके A2 से एग्जिट कर रहा था, वो IL अब A2 से एंटर करके A1 से एग्जिट कर रहा है. बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट इन केस ऑफ प्लगिंग हमें एक सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिमिट द करंट और इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ब्रेकिंग टॉर्क. हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. अब जो आर्मेचर के अंदर करंट डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, दैट मीन्स द टॉर्क डायरेक्शन नाउ विल गेट रिवर्स्ड. अब जो हमारा टॉर्क है वो रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी -T. सो जैसे टॉर्क रिवर्स होगा, मोटर अभी भी 1500 RPM में उसी डायरेक्शन पे रन कर रहा है, बट टॉर्क अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है. यानी कि मैं चलना तो चाह रहा हूँ सीधा, बट मुझे ऑपोजिट साइड से एक फोर्स दिया जा रहा है जिससे कि मैं अब धीरे धीरे ब्रेकिंग मोड पे आ रहा हूँ. सो व्हाट विल हैपन, इट विल नाउ कम्स फ्रॉम 1500 RPM टू 0. बट अगेन सेम थिंग होगा अगर आप इसको 0 RPM पे नहीं पॉश करेंगे, 0 RPM पे आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे. सो द मोटर विल अगेन गो बियॉन्ड 0, दैट इज -1500 RPM तक रन कर जाएगा. सो 0 RPM पे आप उसे स्टॉप कर देंगे और 1500 से 0 RPM के आने का जो टाइम है, यू कैन एडजस्ट दैट टाइम ऑफ 1500 टू 0 बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस लाइक वी डिस्कस इन केस ऑफ शंट मोटर. आप इसके वैल्यू को चेंज करके 1500 से 0 आने का टाइम को भी चेंज कर सकते हैं. Now let's see what exactly happens in the compound motor. In case of a DC compound motor also, we'll connect the supply, start the motor, then the speed and torque is in same direction. Because of this figure, speed and torque is in same direction. The motor starts from 0 and goes up to 1500 RPM. Now what will happen, in case of a DC compound motor, the plugging mechanism is mostly same as a shunt motor. Shunt motor में जैसा ऑपरेशन हुआ था प्लगिंग में, वैसे कंपाउंड मोटर में वही ऑपरेशन होगा. बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चेंज करते हैं. जनरली हमेशा बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि इफ़ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ आर्मेचर देन ओनली द मोटर विल गेट रिवर्स. ऐसा नहीं है. यू कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ फील्ड लॉस. व्हेनेवर प्रेस द स्टॉप बटन, तब क्या करेंगे, अब इस फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं. यानी जो IF पहले F1 से एंटर करके F2 से एग्जिट कर रहा था, वो IF अब F2 से एंटर करके F1 में एग्जिट करेगा. अगेन इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट करंट, इन ऑर्डर टू लिमिट दैट करंट, यू हैव टू कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस से, जैसा कि हमने ऑलरेडी बाकी दोनों मोटर में देखा, इस रेजिस्टेंस से आप उसके रिवर्स टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं. सो नाउ इफ द कनेक्शन इज रिवर्स नाउ, तो द टॉर्क वैल्यू, द टॉर्क कनेक्शन, द टॉर्क डायरेक्शन विल अगेन चेंज टू -T. तो अब ब्रेकिंग होना स्टार्ट होगा. ब्रेकिंग होना स्टार्ट होगा तो 1500 RPM से 0 RPM तक आपका मोटर आ जाएगा. बट अगेन वही चीज़ होगा, इफ़ यू नॉट स्टॉप दैट पर्टिकुलर मोटर एट 0 RPM पे आप अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं करते, द मोटर विल अगेन गो टू द रिवर्स डायरेक्शन. प्लगिंग वी यूजुअली यूज इन केस ऑफ अ DC मोटर व्हेनेवर वी रिक्वायर इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग. इस ब्रेकिंग में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि जैसे ही आप 1500 RPM में मोटर को रिवर्स करते हैं, देयर विल बी अ वेरी ह्यूज स्पार्किंग बिटवीन इन द ब्रश एंड द कम्यूटेटर. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डायनामिक or rheostatic braking is. In case of a dynamic braking, let's take an example. Whenever we switch off a fan in our home, what exactly happens is the moment when we press that switch, power supply to the motor is get interrupted. But the motor is not stopping there. The motor still rotates. यानी कि जैसे ही हम उस स्विच, अपने फैन के स्विच को बंद करते हैं, हमारा मोटर का सप्लाई तो बंद हो जाता है, बट द मोटर इज स्टिल रोटेटिंग. मोटर तब भी रोटेट कर रहा होता है. Why? Because of movement of inertia. उसके अंदर movement of inertia होता है, जिसके चलते मोटर धीरे धीरे अपना स्पीड कम करके लास्ट में 0 हो जाता है. डायनेमिक ब्रेकिंग में हम उसी movement of inertia को यूज़ करेंगे. Now let's see what happens in a dynamic braking. जैसे ही एक DC shunt मोटर को सप्लाई देते हैं, this is the diagram of a motoring operation. So what will happen? The torque and the speed are in the same direction. दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो मोटर जो है वो मेरा 0 से 1500 RPM तक रन करेगा. The moment when you press that stop button and it is using a dynamic braking, अब उस stop button से एक dynamic braking हो रहा है, तब क्या होगा? The armature
will get disconnected from the circuit. जो आपका मोटर का आर्मेचर है वो आपके पूरे सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. So if the armature is not getting supply, यानी कि your motor will not have any supply now, the motor will now start decreasing the speed. अब जो मोटर है वो अब धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट होगा, बट इमीडिएटली बंद नहीं होगा. इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ यू कैन सी दैट द फील्ड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सप्लाई. अभी भी फील्ड आपका एनर्जाइज्ड है. सो अब एक मोटर के अंदर फील्ड एनर्जाइज्ड है, आर्मेचर सिस्टम से निकल चुका है. सो इफ द फील्ड इज एनर्जाइज्ड, दैट मीन्स मोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है. इन दैट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ आर्मेचर. दैट आर्मेचर इज रोटेटिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. एक कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा, व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंडक्टर इज द कंडक्टर विल हैव अ ईएमएफ. कंडक्टर एक ईएमएफ जनरेट करेगा. इफ आई कनेक्ट दिस ईएमएफ विद अ रेजिस्टेंस, अगर उस ईएमएफ को अगर एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, द ईएमएफ विल कन्वर्ट इनटू करंट. बट ये जो करंट यहाँ पे जनरेट करेगा, वो जनरेशन ऑफ करंट किस तरफ होगा? As this is now became a generator, जनरेटर में करंट हमेशा बाहर की तरफ होता है. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे ही आर्मेचर को डिस्कनेक्ट किया गया, आपका मोटर जो है 1500 से जीरो आने की कोशिश किया. द मोमेंट इट इज गोइंग फ्रॉम 1500 टू जीरो, इट इज नॉट स्टॉपिंग इमीडिएटली, इट इज स्टिल रोटेटिंग बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. By using the moment of inertia as a mechanical motion, and the motor will act as a generator now. So it will generate EMF. अगर EMF generate होता है, I will connect a resistance in series with the armature so that the EMF will become a current. But यहाँ पे हमको एक चीज़ नोटिस करना है कि the current direction is in outward. इससे पहले वाले डायग्राम में current direction inward था. सो टॉर्क जो हमारा था वो IA का डायरेक्शन पे था, ठीक है. बट नाउ द करंट डायरेक्शन इज इन आउटवर्ड, सो नाउ द टॉर्क इज माइनस IA. दैट मीन्स द टॉर्क इज रिवर्स्ड. इफ द टॉर्क इज रिवर्स्ड, यानी कि ये जो हमारा ऑपरेशन है, अब यहाँ पे टॉर्क जो है हमारा रिवर्स हो चुका है. इफ द टॉर्क इज रिवर्स्ड, देन द ऑपरेशन इज नाउ इन ब्रेकिंग ऑपरेशन. अब आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके यू कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द IA. If you decrease the value of IA, you can change the braking torque. यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, करंट का वैल्यू कम रहेगा. इफ़ करंट का वैल्यू इज़ लो, देन टॉर्क वैल्यू इज़ ऑल्सो लो, तो मोटर को 10 RPM से 0 RPM में आने में टाइम लगेगा. बट इफ़ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ लेस, करंट वैल्यू विल बी मोर, टॉर्क वैल्यू विल बी मोर. ब्रेकिंग टॉर्क आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, तो 1500 से 0 RPM आने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा. दिस इज़ हाउ इन अ डायनामिक ब्रेकिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में आप एक मोटर को बेसिकली एक जनरेटर की तरह यूज़ करते हैं. सो एक जनरेटर में अगर आप उसके आउटपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे, आप उसकी ब्रेकिंग टॉर्क को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ इन केस ऑफ एनी इंडस्ट्री, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड करंट, सो दिस इज योर 1500 RPM. सो दिस मच टाइम, द टाइम टेकन बाय द मोटर टू गो फ्रॉम 0 to 1500, यानी टू गो फ्रॉम 0 to rated is ramp up time, जिसे हम RUT कहते हैं, ramp up time. Then the motor runs at 1500 RPM. Then when you press that braking mechanism, जैसे ही braking mechanism activate होता है, the motor starts decelerating. 1500 से मोटर जो हमारा 0 आने में, 1500 से हमारा मोटर जो है वो 0 आता है. This particular time is known as ramp down time. The time taken by the motor to go from 1500 या rated speed से 0 speed में आने के लिए जो टाइम लगता है, that particular time is known as रैम्प डाउन टाइम. रैम्प डाउन टाइम को आप इजीली इस रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द मेन एम ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम इज अचीव, दैट टू कंट्रोल द ब्रेकिंग टाइम और टू कंट्रोल द ब्रेकिंग टॉर्क. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दैट सेम डायनामिक ब्रेकिंग इन DC series motor. Now in case of a DC series motor, so whenever we press that stop button and that stop button is using a dynamic braking, then what happens is in case of shunt motor, हम डायनामिक ब्रेकिंग में आर्मेचर को सिस्टम से अलग करके उसके अक्रॉस एक रेहोस्टैट ऐड कर रहे थे. बट इन हियर वी विल डू समथिंग डिफरेंट. वी विल डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई. जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करते हैं, स्टॉप बटन को, हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके वी विल ऐड अ रेजिस्टेंस, अ रेहोस्टैट across the DC series motor. The motor is still running in 1500 RPM. अभी भी मोटर हमारा 1500 RPM से थोड़ा नीचे डिक्रीज कर रहा है. बट नाउ द मोटर विल एक्ट एज अ जनरेटर बिकॉज इट इज़ हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उसे एक मैकेनिकल फोर्स देगा
that mechanical force will be connected to electrical energy because this is now acting as a generator. जनरेटर होने से अब करंट के डायरेक्शन अंदर नहीं, करंट का डायरेक्शन बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, दैट इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर आपका फील्ड का करंट भी रिवर्स हो रहा है। इन केस ऑफ शंट मोटर फील्ड का करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे फील्ड का करंट डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। जब वैसा होगा तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे थे, आपको आउटपुट में नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, रिवर्स बैक जो आपको जनरेशन ईएमएफ मिलेगा वो आपको उल्टा मिलेगा। सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल कनेक्ट द rheostat here by changing the rheostat value. You can by changing the rheostat value you can change the time of braking, you can change the braking torque। 1500 से 0 आने का जो टाइम है वो आप इस रेजिस्टेंस से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले सारे केसेस में देखा है। बट ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर दैट दिस rheostat वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर इस rheostat का वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस के वैल्यू से ज़्यादा रहा तो मोटर कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस आफ्टर विच द डीसी मोटर विल नॉट जनरेट एनी ईएमएफ। सो वो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन वी यूज द डायनामिक ब्रेकिंग इन अ कंपाउंड। इन केस ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर अगेन व्हेन वी प्रेस दैट स्टॉप बटन, यहाँ पे भी ऑपरेशन कुछ डीसी शंट मोटर की तरह ही होगा। What will happen is we will disconnect the armature and this series field, we will disconnect this two and connect it to a rheostat। उसको एक rheostat के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। Now again this system will work as a separately excited DC generator and it will now generate a current which will be in the opposite direction as it was in case of a motor। So अब अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, that means the torque direction is also reversed। जो टॉर्क भी है वो हमारा रिवर्स हो चुका है। Now if the torque is reversed that means the operation now becomes a braking operation। अब जब ऑपरेशन ब्रेकिंग हो चुका है तो अब हमारा जो टॉर्क है वो उल्टे साइड में पड़ रहा है। तो now the motor is now slowing down from 1500 rpm to 0 rpm। You can change the time of slowing by changing the value of this resistance as we have seen earlier। This is how you will do a dynamic rheostat braking in all the DC motor। but यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने का है कि in every case we always dissipate that energy in this rheostat। हम जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक rheostat के अक्रॉस में वेस्ट कर दिया जा रहा है। It is now wasted in the form of heat। So this is not a energy efficient braking system। ये braking system हम आजकल के टाइम में whenever we want a cheap operation, जहाँ पे हमें cheap installation चाहिए, सस्ते में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, सब चीज़ सस्ते में ब्रेकिंग चाहिए, तो we you generally prefer a dynamic braking। But if you want to become a energy efficient industry then you should have a next generation braking system that we call, जिस ब्रेकिंग सिस्टम ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे एवोल्यूशन ला दिया, that we call it as a regenerative braking system। Let's see how exactly it is being done in the DC motor। Now in case of a regenerative braking system, as the name suggests, it is regenerative। regenerative का मतलब होता है कि आप ब्रेकिंग सिस्टम में जो सप्लाई हम डायनेमिक में वेस्ट कर दे रहे थे, जो पावर हम डायनेमिक में एज अ हीट वेस्ट कर रहे थे, उसको हम वापस से सप्लाई में फीडबैक कर सकें। That process is named as regenerative braking system। But whenever a regenerative braking system is required, you have to satisfy the condition that EB should be greater than V। जब भी हमारा बैक EMF V से ज़्यादा हो जाएगा उस केस में हम regenerative braking system को यूज़ कर सकते हैं। That case is known as a regenerative braking system। But EB को V से ज़्यादा करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। The first condition is if you change the value of IF, आप अगर एक्साइटेशन का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो बैक EMF का वैल्यू इंक्रीज करेगा। या फिर सेकंड केस ये है कि इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड अबव नो लोड, इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड अबव द नो लोड स्पीड, यानी कि उस मोटर को अगर आप 1500 RPM के ऊपर भी ले गए तो उस केस में भी EB का वैल्यू V के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। सो इन दोनों केसेस में वी कैन अप्लाई अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। नाउ इन केस ऑफ अ मोटरिंग ऑपरेशन, द मोटर स्टार्ट्स, the armature is connected, the field is connected to the supply, the motor starts from 0 rpm
runs up to 1500 rpm. टॉर्क और स्पीड का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसीलिए अब जो मोटर मेरा है वो मोटरिंग ऑपरेशन कर रहा है. द मोमेंट व्हेन यू प्रेस द रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म बटन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, वो कुछ डायनेमिक ब्रेकिंग की तरह ही होता है. एट 1500 rpm व्हेन यू प्रेस दैट बटन, दिस आर्मेचर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. जैसा कि डायनेमिक ब्रेकिंग में हुआ था वो अब डिस्कनेक्ट हो गया हमारे सिस्टम से. तो जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो इसके अक्रॉस में हमें पता है कि क्या जनरेट होगा, यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा बिकॉज नाउ इट इज एक्टिंग एज अ जनरेटर. नाउ डायनामिक ब्रेकिंग में हम इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते थे और उसमें सारा पावर वेस्ट कर देते थे. बट अब यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है, आइदर हम इससे एक बैटरी चार्ज कर सकते हैं, वो भी एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो, या फिर इस सप्लाई को वापस से सोर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. बट ध्यान रखें कि जब आप इस सप्लाई को इसके सोर्स में प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा, सपोज द EMF विल बी 160 वोल्ट बट यू आर यूजिंग 230 वोल्ट सप्लाई. यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस हुआ 160 और गिरता ही चला जाएगा बिकॉज वो अब 1500 से नीचे जा रहा है. तो जैसे जैसे वोल्टेज नीचे चलते जाएगा, ये आप इसे बैक टू द सप्लाई फीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप इसे बैक कनेक्ट करेंगे द मोटर विल अगेन स्टार्ट रनिंग इन द मोटरिंग ऑपरेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज दिस वोल्टेज. आपको इस वोल्टेज को इंक्रीज करना है. हमने कैसे देखा था, वी कैन ओनली इंक्रीज द EB अबव वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ IF. यानी हमें इस फील्ड सर्किट के करंट को चेंज करके इसका वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ही हम इस सप्लाई को अपने सप्लाई में वापस बैक टू द सिस्टम फीड कर पाएंगे. दोनों ही केसेस में करंट का डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ रहेगा. अगर बाहर की तरफ है यानी टॉर्क डायरेक्शन इज नाउ इन रिवर्स, तो अब जब टॉर्क हमारा रिवर्स हो जाएगा, हमारा जो टॉर्क अब रिवर्स हो चुका है, करंट इज द स्पीड इज इन द सेम डायरेक्शन, सो नाउ द मोटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग from 1500 rpm to 0 rpm. That is what we call it as regenerative braking system. यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करनी है कि आप यहाँ पे आप IF को एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं. सपोज इफ द RPM इज नाउ 10, अब जो हमारा मोटर है वो 1500 से 10 RPM आ गया. 10 RPM में आप चाहे जितना भी IF इंक्रीज कर लें, इसका वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो पाए, तो आप इसको वापस से सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कैनॉट स्टॉप अ मोटर. रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मोटर को पूरी तरह स्टॉप नहीं कर सकता. इट कैन कम अप टू 1 RPM 2 RPM तक लेके आ सकता है उसे, बट इट कैनॉट स्टॉप द मोटर. इन दैट केस, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यू शुड यूज अ मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑल्सो in combination with the brake. Let's take an example of an automobile system. Automobile regenerative कैसे काम करता है वो देखते हैं. The moment you press the brake pedal जैसे ही एक इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार में आप ब्रेक पेडल मारते हैं, the connection changes like this. आपका आर्मेचर जो है सिस्टम से बाहर निकल जाता है. अब वो आर्मेचर आप कनेक्ट कर देते हैं सोर्स में, तो अब धीरे धीरे आपका ब्रेकिंग सिस्टम होने लगता है. 1500 RPM से आपका मोटर अब 0 पे आने लगता है, बट इट विल कम अप टू 10 RPM और 6 RPM और 5 RPM, बट इट विल नॉट स्टॉप द मोटर. उस केस में जब आपको स्टॉप करना होगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक विल एक्ट. एट दैट पर्टिकुलर टाइम द व्हीकल स्टॉप्स. Again the process repeats, and that's how we achieve regenerative braking in any type of operation. Now let's see how exactly regenerative braking works in a series motor. In case of a series motor now, when we press that stop button, this supply will go out of the system. Supply को अब हम disconnect कर दिए. इस supply के across में हम एक resistance add कर रहे थे, but as you can see that supply में यहाँ पे positive और यहाँ पे negative connected था. जैसे ही हम उस supply को system से निकाल देंगे, the motor will now start acting like a generator and the current is going on this direction. अगर करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है, IA का करंट चेंज हो चुका है, द करंट IA बिकम्स माइनस IA, ऑल्सो द करंट IF बिकम्स माइनस IF. यानी हमारा फील्ड का जो फ्लक्स है वो भी रिवर्स हो चुका है. इन दैट केस इफ द फील्ड फ्लक्स इज रिवर्स, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो इनपुट वोल्टेज के रिवर्स होगा. यानी अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होगा. सपोज उस केस में अगर आप यहाँ पे वापस से वही बैटरी कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आपने किया था, यू कैन सी दैट देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट हियर. तो यू कैनॉट यूज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऑन अ नॉर्मल सीरीज मोटर. आपको सीरीज मोटर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. दैट चेंजेस इज नोन एज अ फ्रेंच मेथड ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग. उसमें क्या होगा, लेट्स सी. उसमें वी विल चेंज दैट सीरीज कनेक्शन समथिंग लाइक दिस. जिस तरह से चेंज हो जाएगा, you can see that now the series motor looks in a different way. It has a series connection, but with that series winding we also have some parallel winding, in which this winding is known as the main winding and these three windings are known as auxiliary winding.
तो इस पॉइंट पे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे. द मोटर विल स्टार्ट रन एट टॉर्क एंड स्पीड आर इन सेम डायरेक्शन. इट विल गो फ्रॉम 0 to 1500. बट जैसे ही द मोमेंट वी प्रेस दैट regenerative stop button, the diagram changes onto this. Now you can see that the main winding is connected in parallel to the auxiliary winding in series with the armature. ये जो diagram है, या आपने पहले भी देखा है, this is the diagram of a compound motor. So series motor को अगर आपको regenerative braking करना है, you have to make it either a separately excited generator or you can use this method, जिसमें आप सीरीज मोटर को एक कंपाउंड मोटर की तरह चेंज करते हैं. देन यू कैन यूज़ द सेम शंट मोटर मेथड ऑफ रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इन अ कंपाउंड मोटर. यानी कि सेम आप क्या करेंगे, यू विल डिस्कनेक्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम, यू विल डिस्कनेक्ट the armature from this and you will connect it to a battery in order to charge, or you can also change the value of IF. आप IF का वैल्यू को चेंज करके इंक्रीज करके you can increase the value of EB which is should be greater than V. EB का वैल्यू को आप V से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं and then you can supply it back to the source. So that is how you will do a regenerative braking in case of a series motor. अब सीरीज मोटर में हम रिजेनरेटिव ब्रेकिंग करना पॉसिबल तो है नहीं. सो व्हाट वी विल डू, either we change that series into separately excited or into a compound motor. Then if it is a compound motor, then it will act same like a DC shunt motor. आप आर्मेचर को निकाल देंगे, आर्मेचर को डायरेक्ट बैटरी में सप्लाई कर दीजिए, तो उसका करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स होने के चलते, if the torque is reversed, then the motor will again stop from 1500 to up to 10 rpm. That is how we do a regenerative braking system in shunt, series and compound. But in case of any industry, मेनली किसी भी मोटर पैनल के ऊपर 3 ऑफ बटन होते हैं. 3 ऑफ बटन वहाँ पे आपको पैनल पे दिखेंगे. वन विल बी ऑफ 1, सेकेंड वन विल बी ऑफ 2, थर्ड वन विल बी ऑफ 3. वहाँ पे आपको 3 स्विचेस दिए जाएंगे, 3 बटन्स दिए जाएंगे. ऑफ 1 इज द, व्हेनेवर यू प्रेस द ऑफ 1 स्विच, जब भी आप ऑफ 1 स्विच को ऑन करेंगे, द मोटर विल स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ डायनामिक ब्रेकिंग, या फिर वहाँ पे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी एक्ट कर सकता है. डिपेंड करता है आपके ड्राइव के मॉडल पे. नाउ जैसे ही आप ऑफ 2 को ऑन करेंगे, ऑफ 2 इज़ नथिंग, ये वही सेम मैकेनिज्म है जो हम अपने फ़ैन में यूज़ करते हैं. जस्ट स्विच ऑफ द सप्लाई एंड द मोटर विल स्टॉप यूजिंग इट ओन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोटर इंस्टेंटली बंद नहीं होगा, द मोटर विल स्टॉप आफ्टर रिड्यूसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑफ 2 को हम इसीलिए कोस्टिंग भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोस्टिंग. कोस्टिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें जो मरीन इंजीनियरिंग के सिस्टम में यूज़ होता है. सपोज अ शिप वांट्स टू गो टू द बैंक, तो बैंक से कुछ मीटर दूर ही शिप में लगे हुए मोटर को ऑफ कर दिया जाएगा यूजिंग दिस ऑफ 2 मैकेनिज्म. बट अगर वो ऑलरेडी स्पीड पे था, इफ ऑलरेडी द शिप इज रनिंग विद अ सर्टेन स्पीड, व्हेन यू प्रेस दैट ऑफ 2 बटन, दैट शिप यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गेट टू द बैंक. So that process is known as coasting. Now the third and the most interesting of mechanism of 3 is mechanical emergency. इसको हम mechanical emergency कहते हैं, इसको हम electrical emergency कहते हैं. Mechanical emergency हमेशा या तो plugging यूज़ करेगा, either it will use a plugging mechanism or it will use a mechanical brake, a physical mechanical brake like disc brake या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक. दिस इज ऑफ 3 मैकेनिज्म इज बेसिकली, हमने जो पहले वीडियो देखा था उसमें जब वो इमरजेंसी बटन प्रेस करता है, दिस ऑफ 3 मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड. आइदर वो प्लगिंग यूज़ कर सकता है या फिर वहाँ पे एक मैकेनिकल ब्रेक यूज़ होगा. ऑफ 2 इज नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ होंगे, मोटर इमीडिएटली बंद नहीं होगा, मोटर विल रन बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑफ 1 इज डायनामिक और रिजेनरेटिव, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मोटर को कितने टाइम पे बंद कर सकते हैं बाय चेंजिंग द. अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो रेहोस्टैट को चेंज करने से यू कैन चेंज द टाइम ऑफ रैम्प डाउन. 1500 से 0 आने का जो टाइम है वो आप रेजिस्टेंस को चेंज करके इजीली अचीव कर सकते हैं. इन केस इन दिस होल वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द ब्रेकिंग मैकेनिज्म और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट यू वांट टू डू इन ब्रेकिंग, देन you can contact me through the Zadlan app. You will find the link in the description below. Go there and download the app. Now in the next video we'll discuss about the braking mechanisms of the AC motor. So if you want to get the update, do subscribe to this channel and also press the bell icon so that you will get the daily updates. Until then, I will see you on the next lecture of electrical drive system.